برا راش و فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، آج پھر اس نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے اپنے لیے وہ خوراک جو آج ہماری روحانی ضرورت ہے ہمیں مل سکے۔ انسانوں میں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی خطہ سے ہوں، کوئی بھی رنگ ہو یا زبان بولتے ہوں، ایک بات مشترکہ ہے، وہ ہے پیدا ہونا اور مرنا۔ اسی طرح سے ایک اور جو تجربہ تمام انسانوں کو ہوتا ہے وہ ہے خواب دیکھنا اور رویا۔ خواب جو نیند میں دیکھے جاتے ہیں اور رویا جو کھلی آنکھوں سے بھی خواب کی مانند ہی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں مختلف عقائد کے ماننے والوں کے درمیان یہ ایک تجربہ بھی مشترکہ ہے کہ انہوں نے خواب میں یا رویا میں اپنی مقدس ہستیوں سے ملاقاتیں کی یا مقدس ہستیوں نے انہیں وزٹ کیا یا انہوں نے کچھ مانگا اور وہ انہیں مل گیا۔ یہ کہانیاں یا داستانیں آپ کو تقریباً تمام ادیان کے ماننے والوں میں ملیں گی، اور اگر کوئی کسی دین کو نہیں بھی مانتا تو بھی وہ خواب تو دیکھتے ہیں اور خوابوں میں وہ ملاقات جن ہستیوں سے ہوتی ہے، عزیزوں سے ہوتی ہے، اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ دین اسلام میں، دین مسیحت میں یسوع مسیح، عیسیٰ مسیح زندہ ہیں، اور جب ہم ان کے بارے میں دین اسلام میں پڑھتے ہیں، مسیحت میں پڑھتے ہیں، تو پھر بہت سی باتیں ہم پر کھلتی ہیں۔ جب قرآن کی بات کی جاتی ہے تو جب ہم 3 سورہ میں 55 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس طرح سے ہمیں ملتا ہے، سلائیڈ آپ کو دکھاتا ہوں، کہ یسوع مسیح جو زندہ ہیں، سورہ ال عمران 55 آیت، یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے، دیکھیے اے عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یہاں پر آپ کو مخاطب کون نظر آ رہا ہے اس پر غور کیجئے۔ اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک۔ پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے اور میں تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ تو جب یسوع المسیح، عیسیٰ مسیح کی ذات سے آپ کو متعارف کروایا جاتا ہے تو یہ بات ضروری ہے کہ ہم یہاں پر دیکھیں مخاطب کون ہے۔ فرمان قرآن کے مطابق میں تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، اور پھر اگلی بات، تیرے تابع داروں کو جو تجھ پر ایمان لائے ہیں اور تیری تابع داری کر رہے ہیں، سورہ آل عمران 50 اور 51، میری پیروی کرو، میرا کہا مانو، یہی سیدھی راہ ہے۔ ان کا کہا آپ کو کہاں ملے گا؟ وہ اناجیل میں ملے گا۔ سورہ المائدہ 46 48، اس میں ہدایت اور نور ہے تیرے تابع داروں کو جو تیرے پیچھے چلنے والے تیرے پیروکار ہیں، کافروں پر غالب کرنے والا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مخاطب کون ہے؟ غور کیجئے۔ آج علماء کی بات، دیگر لوگوں کی بات ضرور سنیے اگر سننا چاہتے ہیں۔ بڑی بات، اگر آپ کا اس کتاب پر ایمان ہے تو کون فرما رہا ہے غالب کرنے والا ہوں؟ کن کو؟ تیرے تابع داروں کو، تیری پیروی کرنے والوں کو۔ کب تک؟ قیامت کے دن تک، یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ تو کون کہہ رہا ہے؟ آج میں شروع میں ہی آپ تمام احباب کی نظر یہ کر رہا ہوں کہ کون کہہ رہا ہے
किसका ये फरमान है, किसको आप मानते हैं, किसकी तरफ आप अपने हाथ उठाकर दुआएं करते हैं कि वो सीधी राह दिखाए, वो रहनुमाई करे। तो जब उसकी बात आपकी समाज से टकराती है, आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है, उस वक्त आपका ध्यान, आपकी सोच किधर है? मैं तेरे पैरोकारों को गालिब रखूंगा, वो शिकस्त नहीं खाएंगे, मैं गालिब रखूंगा। फतह खुदा की तरफ से आती है, नुसरत मिन जानिब अल्लाह, खुदा की तरफ से फतह मंद जिंदगी रूहानी जिस्मानी तौर पर। और कब तक? बहुत से लोग कहते हैं जी उनकी शरीयत ख़त्म हो गई है, अब उनकी पैरवी की ज़रूरत नहीं रही। तो यहाँ पर तो वाज़े है यौमुल क़ियामा, अरबी में देख लीजिए, उर्दू में क़यामत के दिन तक क्या रखूँगा? गालिब रखूँगा। तो क़यामत के दिन तक गौर कीजिएगा ज़रा, जो मैं बात इस वक्त कर रहा हूँ आपके सामने। क़यामत के दिन तक जितनी नस्लें, जितने ज़माने, जितने इंसान पैदा होंगे, उनमें से जो भी यीशु मसीह खुदा के जिंदा बेटे, वो इस्लाम जिनको अंबिया में से एक बहुत बड़ा नबी मानते हैं कि वो कलमतुल्लाह हैं, वो रूह अल्लाह हैं, और मसीही खुदावंद मानते हैं। क्यों मानते हैं? आप कुरान को पढ़ लीजिए, आप बाइबल को पढ़ लीजिए। सफाते खुदा ताला, खुदा को जानने की राह है। और यहां पर लिखा है कि इस राह, यीशु मसीह फरमाते हैं, राह और जिंदगी मैं हूं, तो क़यामत तक तेरे पैरवी करने वालों को कौन फरमा रहा है? गालिब रखूंगा। कब तक? क़यामत तक। जितने ज़माने, जितने इंसान पैदा होंगे, उन सब के लिए पैरवी क़यामत तक। उलमा को आप सुनते हैं, कुतुब को पढ़ते हैं, ज़रूर पढ़िए, लेकिन ये आयत आज भी मौजूद है, मनसूख नहीं है, मुतशाबे नहीं है। फिर तो अगली बात भी आप गौर कीजिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, फिर तुम सबको लौटना मेरी ही तरफ है। याद रखिए, इंसान मरने के बाद किसकी अदालत का सामना करेगा? यहां पर यह बात भी नोट कीजिए, मेरी तरफ लौटना है, किस लिए? अदालत होगी। सूरह अल-असर, इंसान खसारे में है। कौन सा खसारा है? अगर वो गुनाह में, तो फिर गुनाह की मजदूरी मौत। और यहां पर कि क़यामत के दिन तक गालिब रखूंगा किनको? तेरे पैरोकारों को, तमाम जमाने में। इस आयत को जरूर आप बार बार पढ़िए। फिर लौटना है मेरी तरफ, मैं ही तुम्हारे आपस के तमाम तर इख्तलाफात का फैसला करूंगा। तो अब इख्तलाफ करने वाली यहां पर तो जो इख्तलाफ करेंगे कि मसीह की पैरवी क़यामत तक नहीं है, गौर से सुन लीजिए। मैं खुदा का खादिम होता हुआ आपके सामने यह बात रख रहा हूं, आज भी मौजूद है। इख्तलाफात का फैसला कर दूंगा। तो जो नहीं मानता कि मसीह की पैरवी क़यामत तक है, वो फिर जब फैसला होगा तो नाफरमानों में अगर जाएगा तो उसका अपना कसूर है। शुरू में ही आपके सामने इसलिए रखा, चूंकि हम जब बात करते हैं हुजूरुल मसीह आज भी जिंदा है, तो फिर अबरानियों का मुसन्निफ आपके सामने आयत रख रहा हूं, वो जब इस बात को खोलता है तो वो क्या कहता है? वो कहता है यीशु मसीह, ईसा मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हैं। यहां पर वो, हम चूंकि वक्त में बटे हुए लोग हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल में रहते हैं, लेकिन खुदा वक्त की कैद से बाहर है, वो वक्त की कैद में नहीं है। हम हैं, चूंकि वो खालिक है, हम मखलूक हैं, हम महदूद हैं, वो लामहदूद है। इसलिए आज मैं तमाम दुनिया के जो इस्लामी हल्का में मेरे बहन भाई हैं और मसीही हल्का में मेरे बहन भाई हैं, उनके सामने ये रख रहा हूं। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि यीशु मसीह की कुदरत, यीशु मसीह का इख्तियार, यीशु मसीह की शरीयत, उनकी तालीम, उनकी हैसियत, उनका तर्स, उनकी मोहब्बत आज भी वैसे ही है जैसे माजी में थी, और ये मुस्तकबिल में क़यामत तक
رہے گی۔ تو یسوع مسیح جب اس زمین پر تھے تو لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ تو اگر آپ میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب میں چلیں تو ایک حواری سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ پہلا باب اور 13ویں آیت ہے۔ تو یسوع مسیح، عیسیٰ مسیح زندہ ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے، یوم القیامہ، قیامت تک لوگ پیروی کریں گے۔ تو وہ جب ملاقات کرتے تھے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے یسوع مسیح سے ملاقات، تو کس طرح سے ہوتی تھی، اور پھر اس ملاقات کے بعد لوگ جو ملاقات کرتے تھے ان پر وہ ایمان، جب ان کو اس حیثیت سے پہچانتے تھے جس حیثیت سے وہ بھیجے گئے ہیں، تو کیا ہوتا تھا؟ یسوع مسیح ایک حواری سے ملاقات کرتے ہیں۔ آئیے یہ ملاقات کا احوال پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے 13ویں آیت مکاشفہ کی کتاب، ان چراغ دانوں کے بیچ میں ایک آدم ذات سا ایک شخص میں نے دیکھا جو پاؤں تک جامہ پہنے اور سونے کا سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی۔ یہ ساری تشبیہات ہیں، ان کے مختلف معنی ہیں، لیکن یہاں پر میں ملاقات کا احوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اس کے داہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تلوار، تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر، یہ بھی اسلام میں خدا کا ایک نام ہے، اول اور آخر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ ابھی میں آپ کے سامنے کتاب سے بھی رکھتا ہوں۔ زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ میں زندہ ہوں، عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، قیامت تک لوگ ایمان لائیں گے۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں تفسیر ابن کثیر، اور یہ تفسیر ابن کثیر آپ کے سامنے ہے، اور اس میں سے حصہ یہ دوم ہے۔ صفحہ نمبر 14 پر آ جائیے۔ اب میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں غور کیجئے گا۔ اس وقت اہل کتاب میں سے ایک بھی باقی نہ بچے گا جو آپ پر ایمان نہ لائے۔ کب؟ قیامت کے دن تک جس کی بات کی جا رہی ہے، ایک بھی نہیں بچے گا جو آپ پر ایمان نہ لائے۔ اور پھر آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی جاتی تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسیح کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ غور کیجئے، اور قیامت سے پہلے آپ دوبارہ زمین پر اس حیثیت سے بھیجے گا۔ آپ کو زمین پر کس حیثیت سے بھیجے گا کہ غور کیجئے، ہر نیک و بد آپ پر ایمان لائے گا۔ ہر نیک و بد آپ پر ایمان لائے گا۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کو تو اپنے پاس چڑھا لیا، اور وہ زندہ ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں ملاقات کر کے بتا رہے ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص حضور المسیح کی شخصیت سے متعارف ہونا چاہتا ہے، ان سے پوچھنا چاہتا ہے، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس کے سوالات ہیں، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح مکاشفہ کی کتاب میں ملاقات کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں میں ابدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اس سے مراد کہ جو اختیار روح اللہ، کلمت اللہ کے پاس ہے، وہ خود بیان فرما رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ انسان اپنی عقل سلیم سے خدا تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور خدا انسانوں پر اپنی باتوں کو کھولتے ہیں، اور کلمت اللہ جب خود متعارف کرواتے ہیں تو پھر یہ شخص
पतमस के जजीरे पर अकेला था, शायद मायूस होगा, और खुदावंद ने उसको विजिट किया। और अगर आप मुकाशफा की किताब पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इस एक मुलाकात ने उस शख्स की जिंदगी में खुशी, इत्मीनान, शादमानी भर दी, और खुदा का इल्हाम, खुदा का मुकाशफा, खुदा के रूह ने वो बातें जो होने वाली हैं इस दुनिया में, वो इस किताब में अपने बंदा के वसीला से लिखवाई। तो एक मुलाकात यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना आरफ के साथ। आगे हम बात करते हैं मत्ती की अंजील में। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती की इंजील और मरकस की इंजील में भी है कि यीशु एक आदमी के साथ मुलाकात करते हैं और वो शिफा पा जाता है। जब वो एक शहर में था तो देखो, कोट से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा, और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। यीशु से मुलाकात कोढ़ी शख्स है और उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे शिफा दीजिए, और वो शिफा पा गया। एक और मुलाकात हम देखते हैं लूका की अंजील के 7वें बाब में है। थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो, एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी, और शहर के बतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास जाकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। सूरह अल इमरान 49, अल माइदा 110 और दीगर भी हवाला जात हैं। अगर कोई हवाला आगे पीछे हो जाए तो माजरत चाहता हूं, लेकिन 49 आल इमरान मुर्दों को जिंदा करते थे। मुलाकात बेवा औरत, उस दौर में ये था कि बेवा औरत का कोई सहारा नहीं होता था। जब कोई भी मेल फैमिली मेंबर ना होता था, मर्द ना होता था टेक केयर करने वाला, कफालत करने वाला, तो बहुत बुरी हालत थी उस दौर में। यीशु को तरस आया, मुलाकात की और मुर्दा जिंदा कर दिया। जो ज़रूरत थी उस वक्त वो पूरी हो गई। आगे हम देखते हैं यीशु मसीह एक मफलूज औरत को शिफा देते हैं। ये भी आपको लूका, मत्ती, मरकस में मिल जाएगा। फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था। और देखो, एक औरत थी जिसको 18 वर्ष से किसी बदरू के बाइस कमज़ोरी थी। यीशु से मुलाकात, वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। यीशु से मुलाकात, एक मुलाकात जिंदगी को बदल देती है। इन तमाम बातों में हम ये देखते हैं, ये जो हवालाजात आपके सामने रखे गए हैं, कि जो कुछ लोगों ने चाहा, यीशु से मुलाकात, हुजूरुल मसीह से मुलाकात, जनाब मसीह से मुलाकात, कलमत उल्लाह से, रूह अल्लाह से मुलाकात, जो कुछ लोगों ने चाहा वो हुजूरुल मसीह उनके लिए करते थे और यौमुल क़यामा, क़यामत तक करते रहेंगे। क्या आज भी ऐसा हो रहा है? आइए मेरे साथ पास्टर नीरज हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं। पास्टर नीरज, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? जी डॉक्टर डैनियल, मैं ठीक हूँ। मैं शुक्र करता हूँ उस खुदा का और ज़िंदगी टीवी का और आपका, कि जिनके वसीले से मुझे अपनी ज़िंदगी की गवाही देने का आज मौका मिला है। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आप अपने बचपन के बारे में, अपने परिवार ख़ानदान के बारे में बताइए कि बचपन कैसा था, ख़ानदान के लोग, धर्म, मज़हब कौन सा था, कैसा था बचपन, और वालिदैन के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी जो फैमिली है, माता पिता हैं, दादा दादी थे, तो ये सभी मतलब कि मंदिरों में आना जाना लगा रहता था। देवी देवताओं के सामने सिर झुकाना, दिए जलाना,
یہ سب परंपराओं में मेरी फैमिली वाले पड़े हुए थे। तो उनको जैसे-जैसे वो हमें भी अपने साथ-साथ में चलाते थे, तो हम भी उनके साथ जैसे वो कहीं पे सिर झुकाने को बोलते, दिया जलाने को बोलते, जब कुछ भी उस रीति के अनुसार करने को बोलते, तो हम भी वैसा ही करते चलते थे। बहुत शुक्रिया, आपने ये बात हम तक पहुंचाई है। अब मैं जी। आपसे पूछना चाहूँगा कि हिंदू मज़हब में बहुत से देवी देवता हैं, जी। तो आप कौन-कौन से देवी देवताओं की परस्तिश करते थे? अगर आप नाम बताना चाहें, ज़रूर बताइए, और क्यों करते थे, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप बताना चाहें तो। जी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी फैमिली वाले देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो हमारे घर के पास में ही एक मंदिर था, तो वो शिव जी का मंदिर था। शिव जी की वहाँ पे पूजा करते थे। उसी के साथ में हनुमान जी का भी मंदिर था, और ऐसे-ऐसे काफ़ी अलग-अलग मंदिर थे जहाँ पे अलग-अलग डेज़ को जाना होता था। मंगलवार को जाना, वीरवार को जाना, शनिवार को जाना। तो उसी-उसी वार को जाके वहाँ जैसे-जैसे वो पूजा आराधना करते थे, वैसे ही हम भी, जैसे वो माता-पिता हमें बोलते थे, हम भी वैसा ही वहाँ करते थे। बहुत शुक्रिया। आ, आपने ये बात बताई है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कौन-कौन से देवी देवता थे? अगर आपको नाम याद हैं, तो ज़रूर हमें बताइए। जी। अगर नाम याद नहीं, तो फिर मैं कुछ और भी आपसे पूछूँगा। जी, मैं जैसे आपको बताया, वहाँ शिव जी की मूर्ति थी, तो उनकी पूजा करते थे, और एक हनुमान की वहाँ मूर्ति थी। इन दोनों मूर्तियों के सामने ही ज़्यादातर हमें वहाँ पे ले जाया जाता था, वहीं पे हम ज़्यादा पूजा करते थे। तो क्यों करते थे, ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। किस मकसद के लिए आप पूजा करते थे? क्या वो मकासद पूरे होते थे या नहीं? अगर होते थे तो कैसे थे? अगर नहीं होते थे तो फिर आप क्या सोचते थे? सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप बताना चाहें तो। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जिस मकसद के लिए भी पूजा आराधना करते थे, वो मकसद तो नहीं पूरे होते थे, लेकिन वो मकसद और ज़्यादा क्या करते जाते थे, बढ़ते जाते थे। जिस मकसद के लिए पूजा करते थे, वो मकसद कभी भी मैंने अपनी लाइफ़ में या अपनी फैमिली वालों की लाइफ़ में पूरा होते नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारे नाजरीन, ये सवाल मैंने इसलिए किया कि अगर आप किसी भी जगह पर पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म में हैं, तो अगर आपके वालिदैन उस मजहब की पैरवी करते हैं, मजहब सबको प्यारा होता है। लेकिन ये जो सवाल मैंने पूछा कि जिस मकसद के लिए वो पूजा की जाती है, खुदा को माना जाता है, चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, क्या वो मकासद पूरे होते हैं? मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि नमाज बुराइयों से रोकती है, मिसाल दे रहा हूँ, तो क्या वो नमाज जो हम पढ़ते हैं, क्या हकीकतन अपने इलाकों में, अपने मुल्कों में जहां आप बैठे हुए हैं, चाहे मसीही हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आप कर रहे हैं, मैंने मिसाल दी नमाज बुराइयों से रोकती है, तो क्या उस नमाज ने, उस इबादत ने, उस फ़र्ज़ ने आपको ये ताकत अता फरमाई कि हकीकतन आपको पता हो कि वो बुराई है और आप गालिब आए हों, आपने ना की हो? संजीदा बात है, मसीहों से भी, मुसलमानों से भी, हिंदुओं से भी, सिखों से भी, कोई भी अकीदा क्यों नहीं है, बहुत संजीदा मुआमला है इस वक्त, जिस नहज तक हम बहैसियत इंसान पहुंचे हुए हैं। तो जरूर है हम तज्जिया करने के लिए तैयार हों। और हजूरुल मसीह ने फरमाया था, बहुत वाज़ेह है, कि एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। अगर खारा है, कड़वा, वही होगा। अगर मीठा है तो फिर मीठा, दो नहीं हो सकते। तो आज मैं खुदामंद का खादिम होते हुए आपके सामने ये बात भी रख रहा हूं, आप जिस भी खुदा, जिस भी किताब,
को मानते हैं, क्या वो मुस्तकबिल के लिए है कि इंशाअल्लाह खुदा का फजल हुआ तो यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसां है? पूरी दुनिया की किताबें पढ़ लीजिए, पूरी दुनिया के फलसफों को खंगाल लीजिए, तहकीक कर लीजिए, कदीम अदयान पर निगाह डाल लीजिए, आज की तारीख को देख लीजिए, और फिर अबरानियों का मुसन्नफ 13वें बाब की 8वीं आयत में यह बयान कर रहा है, आपकी तवज्जो उस तरफ मबजूल करवा रहा है कि एक कुदरत वाली हस्ती है जो माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिए यकसां है, एक सी है, और वो किस तरह से आज भी मसीह से मुलाकात, ये बात कर रहे हैं, माजी में देखा, अभी हम बात करेंगे। तो ये बताइए पास्टर नीरज साहब कि यीशु मसीह तक फिर आने का सफ़र कैसे शुरू हुआ और क्या हुआ? जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 4th क्लास में पढ़ता था, स्कूल में जाता था। तो उस समय जब मैं स्कूल में जाता था तो स्कूल में वहाँ जब मैं बैठता था तो बैठे बैठे मेरी जो दोनों आंखें हैं वो बंद हो जाती थी, दोनों आंखों की जो रोशनी है वो चली जाती थी। तो साथ वाले जो और स्टूडेंट थे और बच्चे थे, उन्होंने ये सोचा कि मैं यहाँ पे सो रहा हूँ, सोने आया हूँ। तो उन्होंने टीचर्स को शिकायत करनी शुरू की कि ये स्टूडेंट जो है हमारे साथ वाला ये सो रहा है। तो टीचर्स ने मुझे डांटना शुरू किया और मेरी फैमिली में शिकायत करना शुरू किया कि ये स्कूल में क्लास में आकर सो जाता है। तो फैमिली वालों ने इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना शुरू किया और मुझे घर में ज़्यादा नींद करने के लिए उन्होंने बोलना शुरू किया। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी ये जो समस्या थी, ये जो प्रॉब्लम थी, मेरी आंखें बंद होना, ये कम नहीं हुई बल्कि ये ज़्यादा ही होती चली गई। पहले में तो 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट होता था। तो आस्ते-आस्ते करते-करते ये 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी होने लगा। तो फिर घर वालों ने मुझे मेडिसिन देनी शुरू की, डॉक्टर्स के पास ले जाना शुरू किया। तो उसके बाद ये समस्या जो थी और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। जैसे मैं स्कूल से घर जाता और घर से स्कूल जाता तो रास्ते में भी ये समस्या मुझे होने लगी। मैं रास्ते में चलते-चलते गिर पड़ता था। तो उसके बाद घर वालों ने और ज़्यादा गौर फरमाना शुरू किया, तो मुझे और बड़े डॉक्टर्स के पास ले जाना शुरू किया। लेकिन समस्या कम नहीं हुई। फिर जैसा कि घर वालों की रीति-रिवाज थे, परंपराएँ थी, उन्होंने मुझे बहुत सारे सयानों के पास, बाबाओं के पास, ऐसे अलग-अलग जगहों पर ले जाना शुरू किया, जहाँ से उनको ये मतलब कि एक आशा होती थी कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो कुछ उनके करने से मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरी आँखों की रोशनी है जो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये समस्या कम नहीं हुई और ज़्यादा बढ़ती चली गई। 2-2, 3-3 घंटे मेरी जो आँखें हैं वो खुलती नहीं थी, मुझे दिखाई नहीं देता था। तो उसके बाद में मेरे फ़ादर साहब को किसी ने बताया कि आप ऐसा करें, यहाँ पे एक चर्च लगता है, चर्च में एक पास्टर हैं, आप उनके पास अपने बेटे को ले जाइए। और हमने सुना है कि वहाँ पे जो भी जाता है वो अपनी बीमारी से, अपनी समस्या से छुटकारा पा लेता है। तो मेरे फ़ादर साहब, मेरी मदर मुझे वहाँ पे लेके गए। तो जैसे ही मुझे वहाँ पे लेके गए तो वहाँ के जो पास्टर थे उन्होंने मेरे पे दुआ करने के बाद उन्होंने बोला कि हम विश्वास करते हैं कि आपको ये समस्या फिर से नहीं होगी, आप भी इस बात का विश्वास कीजिए। तो मेरे घर वालों ने भी विश्वास किया, मैंने भी विश्वास किया कि अगर इनके ऐसा बोलने से मेरी समस्या दूर हो जाएगी तो हमें विश्वास कर लेना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने पहले ही संडे, पहले ही दिन एक चीज़ को महसूस किया कि जो वहाँ के जो पास्टर थे वो बाकी सब लोगों को पूछ रहे थे, उनका हाल-चाल पूछ रहे थे कि आप कैसे हैं? आपके घर वाले कैसे हैं? आपके बच्चे कैसे हैं? सबका हाल-चाल पूछ रहे थे कि आप पिछले संडे क्यों नहीं आए? अभी कैसे हैं? ये वो।
آپ کا کام کاج کیسے ہے، پڑھائی کیسی ہے. تو وہ باتیں مجھے ان میں اچھی لگی. مجھے لگا کہ یہ ایک اچھی جگہ ہے جہاں پہ سب لوگوں کا حال چال جو ہے جانا بہت جاتا شکریہ، ہے. بہت اسی شکریہ، پرکار میرا بہت شکریہ. پاسٹر نیرج ہمارے ساتھ ہیں، بیان کر رہے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں. پھر چرچ میں گئے تو انہیں کیسا محسوس ہونا شروع ہوا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر پاسٹر نیرج کے ساتھ بات کو جاری رکھیں گے. جی خوش آمدید، براہ راست شو فضل ربی میں بات کیجیے، آپ آن ایئر ہیں. جی بات کیجیے. وہ کلیریفیکیشن لینی تھی جی جی بات کیجیے. کہ جب ابھی پڑھا آپ نے، جب ابھی پڑھا تھا کہ قرآن میں سے کہ جو عیسیٰ ہے وہ جب واپس آئے گا وہ قرآن کے مطابق وہ اس کے جو ایماندار ہے اس کی بات مانیں گے. جی بالکل ٹھیک. کیا میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ وہی عیسیٰ ہے جو کہ بائبل میں جس کا نام یسوع ہے؟ جی آپ اس بارے میں بتا. جی بہت شکریہ. آپ کا نام؟ نوید. نوید صاحب بہت شکریہ. آپ نے جو بات کی، آپ کا اصل سوال یہ ہے کہ یہ وہی عیسیٰ ہے جس کی بائبل میں جو شخصیت بیان کی گئی ہے وہ ہے، یا جس کی تعلیم قرآن میں پائی جاتی ہے وہ عیسیٰ ہے؟ یہی سوال ہے آپ کا؟ جی اس کے جواب کے مطابق پھر دوسرا ایک کلیریفیکیشن کا سوال ہے. تو وہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے صرف سمجھنا ہے، کیونکہ میں دوران نشریات آیا تھا تو اس میں میں نے کہا کہ میں نے غلط فہمی. جی میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں. اسلام میں جو مسیح ہے وہ بالکل فرق ہے، اور جو مسیحت میں مسیح کا تصور ہے وہ بالکل فرق ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب تعارف کروایا جاتا ہے تو قرآن میں مسیح کو ابن مریم کا بیٹا کہا گیا ہے. اور جب ہم اناجیل میں پڑھتے ہیں تو یسوع المسیح حضور المسیح کی والدہ کو جب متعارف کروایا جاتا ہے تو مقدسہ مریم متعارف کروایا جاتا ہے. تو کچھ باتیں مشترکہ ہیں، کچھ باتیں مشترکہ نہیں ہیں. تو پہلی تو میں یہ بات آپ کو بتا دوں ایک طالب علم ہوتے ہوئے کہ جو باتیں مشترکہ ہیں ہم اس تعلق سے بات کرتے ہیں. تو اگر مسیح کے تعلق سے آپ کو جاننا ہے تو ابھی میں آپ کو یہ تقابلہ ادیان ہے کتاب کا نام، اور اس میں دور حاضرہ کے جو حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب ہیں. میں پہلے مجھے لگتا ہے آپ مسیحی ہیں، تو اگر آپ مسیحی ہیں تو ابھی میں پہلے آپ کو جو ہمارے مسلمان بہن بھائی مانتے ہیں اور جو مسیحی مانتے ہیں، جو باتیں مشترکہ ہیں وہ آپ ان پر فوکس کر سکتے ہیں، اور جو مشترکہ نہیں ہیں ان پر آپ ڈبیٹ کر سکتے ہیں. ماننا چاہیں مانیں، نہ ماننا چاہیں نہ مانیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن جو بات مشترکہ ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں. یہ ہے تقابل ادیان میں جب پروفیسر صاحب بات کرتے ہیں مسیحت کی تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو باب نہم ہے اس کتاب میں، تو چونکہ یہ گواہی بھی اسی تعلق سے ہے تو نوید صاحب آپ ذرا غور کر لیجئے کہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم مشترکہ جو بات کرتے ہیں وہ نجات دہندہ کی بات کرتے ہیں. تو میں وہی جو نجات دہندہ یسوع مسیح ہے، گناہوں سے بچانے والا، چھڑانے والا، جنت میں لے جانے والا، اس کی بات کرتے ہیں. تو یہاں پر جب وہ مسیح کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر وہ پس منظر بیان کرتے ہیں. اب میں یہاں پر غور کر لیجئے، آپ بھی دیکھیے. آمد عیسیٰ علیہ السلام سے قبل کے سیاسی حالات کی جب بات کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہودی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بادشاہ پیدا فرما دے، یہ دعا کیا کرتے تھے جو یہودیوں کے دشمنوں کو تباہ کر دے اور یہودیوں کو عظمت دے. بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل، غور کیجئے، یہودی ایک نجات دہندہ کے منتظر تھے. اور اگر آپ 53 ازایا پڑھیں تو خدا کا خادم جو نجات دلائے گا اس کے بارے میں گناہوں سے نجات،
वो पॉलिटिकल जो आज़ादी थी, जो मुल्क की आज़ादी थी, उसकी बात उस वक्त तक बन चुकी थी, तालीमात बिगड़ चुकी थी। असल बात गुनाहों से निजात देने वाला था। कैसे आप जानेंगे? आगे देख लेते हैं। ये हमारा मुश्तरका नुक्ता है, मैंने पहले आपको बता दिया बड़ी आसानी के साथ। अगर आप चाहें कॉल करें, बाद में तफसील के साथ भी आपको बता सकता हूं। अब हम इस बात को आगे ले चलते हैं। गौर कीजिए प्रोफेसर साहब, जब बात कर रहे हैं तो गौर कीजिए, जो नुक्ता मैं तमाम बहन भाइयों को और आपको भी बताना चाहता हूं, जो मुत्तफिक बात है वो यीशु मसीह गुनाहों से निजात देने वाला, क़यामत तक निजात दहिंदा, हम वो बात कर रहे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। जब प्रोफेसर साहब मोहम्मद यूसुफ साहब लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये देखिए, उसके यहां बेटा पैदा होगा, गौर कीजिए, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही लोगों को उनके गुनाहों से निजात दिलाएगा, अपने गुनाहों से निजात दिलाएगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि खुदावन ने नबी की मार्फत जो वादा किया था वो पूरा हो। तो ये नबी की मार्फत वादा कहा था। यसाया की किताब 7-9 बाब और 53 चैप्टर। ये देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ नवीद साहब, आप गौर कीजिए ताकि आपकी अकल भी रोशन हो जाए। ये हज़रत मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ खान, उस्ताद अहले हदीस जामिया अशरफिया लाहौर। तो मैं दोनों अतराफ की बात आपको बता रहा हूं, जो बड़ी वाज़ेह बात है, जो नुक्ता आज भी अहले इस्लाम और मसीहों को समझने की ज़रूरत है, वो मसीह के वसीला से निजात है। मौलवी फ़रोज़ुद्दीन जब लफ्ज़ ईसा फ़रोज़ुल लगात 962 सफ़े पर वो कहते हैं कि मतलब है गुनाहों से निजात देने वाला, तो ये मुश्तरका बात है। और अगर लोग नहीं मानते तो उनकी अपनी मर्जी है। बहुत सी बातें हैं, लोग मानते हैं, नहीं भी मानते। जो लादीन हैं वो किसी को भी नहीं मानते, तो हम कोई ज़ोर तो नहीं देते। हमारा काम है बाइबल की सदाकत को बयान करना, और कुरान में अगर कोई बात है जो उसके मुताबिक है, जो बाइबल बयान करती है, तो बाइबल बयान करती है उसका नाम यीशु रखना। मत्ती की अंजील 1 बाब। और प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं, ये किताब आपके सामने है। बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही लोगों को गुनाहों से निजात दिलाएगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि खुदावन ने जो नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। आगे देख लीजिए, ये फरिश्ते का बयान है। और अब आ जाते हैं कुरान की तरफ। अब ये देख लीजिए, मसीह हज़रत ईसा मसीह की पैदाइश, कुरान करीम की रोशनी में जो बात मुश्तरका है उसकी तरफ आ रहे हैं। ये देखिए, उनकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा, किसकी तरफ? मुकद्दसा मरियम की तरफ। और फिर हम देखते हैं, आपको एक पाकीज़ा फरजंद अता करूं, किसको? मुकद्दसा मरियम को। और फिर वो कहते हैं कि मुझ पर ये आसान है कि रूहुल कुद्स के वसीला से ये होगा। और फिर क्या बनाएंगे वो? ये गौर कीजिए, यीशु मसीह क्या हैं? वो खुद तुम्हें एक निशान बख्शेगा, एक कंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम अमैनुएल, खुदा हमारे साथ, खुदा के साथ मिलाप होगा। कैसे? ये देखिए कुरान क्या कह रहा है, हम उसे लोगों के लिए अपनी कुदरत की एक निशानी और रहमत का जरिया बनाएंगे। शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन रहमत और फजल यीशु मसीह के वसीला से पहुंचा है। नवीद साहब, कुछ समझ आ गई आपको बात की? बात जो है उसमें आपने कहा आप कोशिश करते हैं आप बाइबल की सदाकत से बात करें, मगर मैं आपकी तवज्जो इस बात पे लाना, मेरी तवज्जो ना दिलाएं। मैं जो बात आपके सामने जो मैंने रखी है बात, वो आपको समझ आ गई है कि नहीं? यही पहले ये आपका नुक्ता था जी, मसीह जो इस्लाम में है और मसीह जो कुरान में है। तो ये बात आपको पहले बताइए, उस तरफ मैं बाद में भी आपसे बात कर सकता हूँ। ये बात आपको समझ आ गई हम क्या कर रहे हैं? वो समझ इसलिए नहीं आई क्योंकि जब आप एक और आयत की क्लैरिफिकेशन करेंगे, और क्लैरिफिकेशन नहीं, वो आयत खुद में, जिसे आपने अभी पहले जिक्र किया था कि जो ईसा है वो जिंदा है और वापस आएगा कुरान के मुताबिक। मगर अगर आप कुरान उसका 4 सूरह 4 और उसकी 150, जी मुझे पता सूरह निसा में है, वो मरा ही नहीं, मुझे पता इन बातों का। इस पर मैं डिबेट कर सकता हूँ आपके साथ अगर करना चाहें। ये नुक्ता मसीह निजात दहिंदा है, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बस मुझे बताएं पहले, उसके बाद बात करते हैं। सर वो मसला ये है कि मुत्तफिक जो है
وہ ہم آپس میں جو بات کی کتابوں کی متفق ہے اس کے اوپر میں اگری نہیں کرتا. تو آپ نہ کیجئے اگری، آپ نہ کیجئے. پوری دنیا میں بہت سے لوگ ہیں یسوع مسیح کو نجات دہندہ نہیں مانتے. ہم آپ کو ایگری کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. جو صداقت ہے بائبل کی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ایگری ہوتے ہیں ہوں، نہیں ایگری ہوتے نہ ہوں. بہت سے لوگ ہیں ایگری نہیں ہیں. اس لیے بہت شکریہ آپ نے کال کیا. میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ مسیح کو نجات دہندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. بہت شکریہ. اگر آپ میرے ساتھ بات کرنا چاہیں پروگرام کے بعد میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. بہت شکریہ. جی پاسٹر نیرج صاحب کے ساتھ بات کو جاری رکھتے ہیں. اب پیارے ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن اور بائبل رکھی. یہ ہے تقابل ادیان. اب لوگ اسلام میں 72-73 کتنے فرقے ہیں. کچھ باتوں کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. یسوع مسیح واحد راہ ہیں جنت کی، یہ ہم بیان کر رہے ہیں. اور اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا وہ زیادہ عالم بنتا ہے تو میں ضرور لوگوں کو کہتا ہوں کہ یوٹیوب پر بھریے، اپنے علم کو لوگوں تک پہنچائیے. بہت سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں، ہم بائبل کی بات مانیں گے، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ تمام لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. پچھلا شو کیا یسایہ کی کتاب 59، خدا اور انسان کے درمیان میں گناہ نے جدائی ڈال دی اور یسوع مسیح صلیب پر تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے مر گئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. وہ زندہ ہیں اور وہ آئیں گے. اور یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، چونکہ وہ زندہ ہیں. اور یہی وہ پیغام ہے جو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اس لیے پاسٹر نیرج صاحب، اب آپ بتائیے کہ یسوع مسیح کے ساتھ آپ کا تعارف کیسے ہوا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سمے میں چرچ میں جب گیا تو چرچ میں مجھے سب سے اچھا لگا کہ چرچ والے جو پاسٹر تھے وہ لوگوں کا حال چال پوچھ رہے تھے، لوگوں کے پچھلی لائف کے بارے میں پوچھ رہے تھے، لوگوں کا آنا جانا، کھانا پینا، کام کاج سب کچھ پوچھ رہے تھے. تو وہ مجھے وہاں پہ بہت اچھا لگا. تو اس دن سے میں نے چرچ جانا کنٹینیو سٹارٹ رکھا، کنٹینیو جاتے رہے ہم. تو پرمیشور کا، خدا کا میں شکر کرتا ہوں کہ اس دن کے بعد سے اب تک میری آنکھوں میں جو پرابلم تھی وہ پھر سے نہیں ہوئی. میں بالکل اچھا ہوں اور یہ میرے جیون کی سب سے بڑی جو گواہی ہے. اس کے دوارا ہی میں نے پربھو یسوع مسیح کو جانا، مسیح کو میں نے جانا، اور اس کے دوارا ہی میرے جیون میں مسیح کا کاریہ ہے جو وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. جی بہت شکریہ. تو جب یسوع مسیح کے ساتھ آپ کا یہ تعلق بنا تو کیا ہوا پھر، یہ بتائیے اب. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے جیسے وہ چرچ میں جو پاسٹر تھے وہ لوگوں کو بولتے تھے کہ آپ کی جو سمسیا ہے وہ ہمیں بتائیے، اس کے بارے میں ہم دعا کریں گے، پرارتھنا کریں گے. تو لوگ بھی آ کے وہاں پہ چرچ میں بولتے تھے کہ ہم نے یسوع مسیح سے پرارتھنائیں کی، یسوع مسیح سے دعا کی، تو یسوع مسیح نے ہماری پرارتھنا کو سن لیا، ہماری دعا کو سن لیا، ہمیں ہماری بیماری سے چھٹکارا ملا، ہمیں ہماری مشکل سے چھٹکارا ملا. تو وہ سب باتیں جیسی جیسی میں سنتا گیا تو میرے من میں بھی یہ خیال آنا شروع ہوا کہ کیوں نہ میں بھی ایسے ہی یسوع مسیح کو پکارنا شروع کروں، یسوع مسیح سے باتیں کرنا شروع کروں. تو میں ان دنوں میں اپنے آپ میں یہ سوچتا تھا کہ میں یسوع مسیح سے بات کروں. تو میں یسوع مسیح سے باتیں کرتا تھا کہ کل صبح ایسا ہونا چاہیے. یہاں پر میں ایک لمحے کے لیے پاسٹر نیرج، ایک لمحے کے لیے پیارے ناظرین غور کیجئے، نیرج صاحب کیا بات کر رہے ہیں. یسوع مسیح زندہ ہیں اور انہوں نے یہ لوگوں سے سنا، وہاں پر دیکھا کہ لوگ یسوع مسیح سے بات کرتے ہیں. اور جب وہ یسوع مسیح سے ملاقات کے لیے کہتے ہیں، جب وہ یسوع مسیح سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے لیے یہ کیجئے، تو یسوع مسیح جو زندہ ہیں کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں. تو جب لوگوں سے انہوں نے سنا کہ مسیح ان کے لیے کر رہے ہیں، تو آئیے اب دیکھتے اور سنتے ہیں کہ پھر کیا ہوا
इन्होंने क्या करना शुरू किया चूंकि यीशु मसीह जिंदा है। जी बताइए फिर क्या हुआ। जी डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहता हूँ, तो मैंने भी जैसे लोगों से सुना, मैंने भी अपने आप में ये प्रार्थनाएं करनी शुरू की, दुआ करनी शुरू की। तो मेरे ज़्यादा समस्याएं तो नहीं थी, प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन छोटी छोटी बातों में मैंने खुदावंद को पुकारना शुरू किया। जैसे कि मुझे ऐसा लगता था कि सुबह जब मैं स्कूल में जाऊंगा, क्लास में जाऊंगा, तो ये टीचर मुझे डांटेगी, ये टीचर मुझे कुछ बोलेगी। तो मैं रात को ही ये दुआ करता था, प्रार्थना करता था कि यीशु मसीह अगर आप हैं, अगर आप लोगों की प्रार्थनाएं के जवाब देते हैं, तो मेरी भी प्रार्थना का जवाब दीजिए। मुझे जो ये टीचर डांटने वाली है, ये टीचर मुझे ना डांटे। तो ऐसे ऐसे करके जब मैं ये दुआ करता था, तो मुझे ख्वाब में ही रात को ही ये दुआ का जवाब मिलता था कि ऐसा ही होगा। तो मैं क्या देखता हूँ, अगले दिन जो मैंने मांगा होता था वो ऐसा ही मेरे लिए हो जाता था। जिस प्रकार मेरा जो विश्वास है वो मसीह पर, खुदावंद पर बढ़ना शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप देख और सुन रहे हैं कि यीशु मसीह से मैं जो मांगता था वो मुझे मिलता था। मैंने आपके सामने आयात रखी, कोड़ी आया, उसने कहा अगर आप मुझे शिफा दे दें तो मैं शुक्रगुजार हूँगा। उसको शिफा मिल गई। फिर हम देखते हैं एक औरत जिसके खून जारी था, लूका की अंजील, मत्ती की अंजील, दीगर अनाजील में आपको उसने वो कहती थी कि मैं मसीह को छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। वो मसीह को छू लेती है और वो शिफा पा लेती है। यीशु मसीह से जब भी हम कुछ मांगते हैं, उनके पास आते हैं, तो यीशु मसीह कल, आज, अब तक यकसा है। मोहब्बत, तरस, फज, दुआओं का जवाब। और जब ये दुआओं का जवाब आपको मिलता है तो फिर क्या होता है पास्टर नीरज? जब आपको ख्वाब और रोया के वसीला से खुदामंद यीशु मसीह जवाब देते थे तो फिर आपको कैसा महसूस होता था? ऐसा लगता था कि जैसे मुझे बहुत बड़ा जो है खुदा मिल गया है, जिससे मैं छोटी छोटी चीजें ही नहीं, छोटी छोटी दुआ ही नहीं, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें मैं उस खुदावंद से क्या कर सकता हूँ, मांग सकता हूँ। तो ऐसे मैं उस पर विश्वास करना शुरू हुआ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगना शुरू हुआ। तो मैं अपनी क्लास वालों से, अपने जो फ्रेंड सर्कल है, अपने साथ में जो स्टूडेंट थे, अपने जो रिश्तेदार थे, उनको भी मैं ये बताना शुरू करता था कि आप भी मेरी तरह ऐसे खुदावंद को पुकारना शुरू कीजिए, तो आपकी भी प्रार्थनाओं का खुदावंद जवाब देगा। ऑडियो की खराबी है। हेलो जी, जो ही राब्ता इनके साथ दोबारा से बहाल हो जाए मुझे ज़रूर बताइए। प्यारे नाजरीन, यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसां है और वो लोगों से प्यार करता है। नीरज ने लोगों से सुना कि यीशु मसीह किस तरह से इंसानों के साथ आज भी और राबते में है, और वो राबता है दुआ। और उस दुआ का जवाब जब मिलता है, अगर आप किसी जिंदा शख्स के पास जाते हैं तो फिर आप उससे गुफ्तगू करते हैं। अगर आप किसी स्टोर में चले जाएं और वहां मुर्दा शख्स बैठा हो, तो क्या जो आप कुछ उससे मांगेंगे वो आपको देगा? या आप कब्रिस्तान में चले जाइए, उनसे कुछ मांगेंगे, आपको देंगे। लेकिन जो जिंदा शख्स है उसके साथ आपकी गुफ्तगू हो सकती है। अगर स्टोर में बैठा हुआ है जिंदा शख्स, आप कहेंगे जी साबुन चाहिए, आप कहेंगे दूध चाहिए, वो आपको देगा। और जो मसीह कलाम खुदा में उनकी जुबान मुबारक से जो उन्होंने दावे किए, उन्होंने फरमाया कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से जिंदगी पाओ। इससे मुराद वो जिंदगी जो खुदा जैसी जिंदगी हो। क्योंकि मैं आसमान से आया हूं और मैं तुम्हारे लिए आसमानी जिंदगी लाया हूं। और मसीह उस जिंदगी को पाने का तरीका भी बताते हैं। लोगों से मुलाकात, लोगों के साथ कलाम, लोगों के लिए मोजज़े, लोगों के लिए शिफाएं। और बारहा उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी भीड़ को अपनी कुदरत कामिला से
खुराक भी मुहैया की। पास्टर नीरज, अब आप हमें ये बताइए कि यीशु मसीह के पैरोकार आप कैसे बने, कैसे उनके पीछे चलना शुरू किया? जी, जैसे मैंने आपको बताया है, छोटी-छोटी मैं विनती, छोटी-छोटी प्रार्थनाएँ मैं उनके सामने रखता था, तो उन विनतियों का, उन प्रार्थनाओं का मुझे जवाब मिलता था। तो ऐसे ही मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में बताना शुरू किया। तो छोटी-छोटी बातें फिर बड़ी-बड़ी बातों में बदलनी शुरू हो गई। बड़ी-बड़ी गवाहियाँ मेरे जीवन में आनी शुरू हो गई। मेरे पड़ोस में या मेरे फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारी में किसी को कोई समस्या होती थी, परेशानी होती थी, तो हम उनके लिए ऐसे ही दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे, जैसे कि हमारे लिए चर्च में हमारे पास्टर प्रार्थना करते थे। तो जैसे हम प्रार्थना में मांगते थे, वैसा ही उनके लिए हो जाता था। ऐसे हम मसीह में और ज़्यादा आगे बढ़ने शुरू हो गए। जी, बहुत शुक्रिया। आप प्रार्थनाएं करते थे और यीशु मसीह उसका जवाब देते थे। आज पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अभी जिन्होंने कॉल की, वो भी शायद कुछ अपना उनका नज़रिया था, वो उस तरह से समझना चाहते थे और हमें चाहते थे कि हम वो कहें जो वो चाहते हैं। तो आप तमाम दुनिया के लोगों के लिए आपका अपना ज़ाती तजर्बा है। तो अगर खुदा आपको लंबी ज़िंदगी दे, यही मौका हो आपके पास, तो मसीह खुदावंद के बारे में हमारे मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं, तो आप मसीह के बारे में लोगों को क्या बताना चाहेंगे इस वक्त कि वो क्या करें यीशु मसीह के बगैर? अगर वो हैं तो वो क्या करें कि वो ये बरकत पा सकें? जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसा कि जब हम मसीह में आए, तो मसीह में आने के बाद जैसे हमारा जीवन बदल गया। हमने अपने गुनाहों से, अपने पापों से, अपनी गलतियों से, अपने पुराने जो चाल-चलन से है, तौबा करनी हमने शुरू की, मन फिराना शुरू किया। तो ऐसे ही मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, आप भी अपने गुनाहों से, गलतियों से, पापों से, बुरे चाल-चलन से तौबा कीजिए, मन को फिराइए। तो जैसे मसीह मेरे जीवन में आए, मसीह ने मेरे जीवन को बदला, और भी बहुत से लोगों के जीवन को मसीह ने बदला। ऐसे ही तमाम आप सबके लोगों के जीवन को मसीह बदल देंगे, पर ज़रूरत है कि आप अपने पापों से, अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए, अपने मन को उन बुरी आदतों से क्या कर लीजिए, फिरा लीजिए। बहुत शुक्रिया। यही मेरा पैगाम है। ये जो बात कर रहे हैं इस वक्त पास्टर नीरज आप लोगों के सामने, तो ये कैसे होता था? खुदा का बंदा पतरस रसूल बहुत बड़े मजमे से खिताब कर रहा था, और जैसा ही अभी नीरज साहब बयान कर रहे हैं कि मैंने गुनाहों से तौबा की और मसीह के साथ मेरी मुलाकात, के मेरी दुआओं का जवाब, मसीह मेरे साथ, मैं मसीह का, और मसीह क्या कर रहा है मेरे वसीला से अब लोगों के लिए भी बरकत के दरवाजे खुल रहे हैं। और जब लोगों ने ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा, उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें? कैसे ये जो बरकत तुमने पाई है हम कैसे पाएं? कैसे मसीह के साथ हमारा भी ये रिश्ता, ये ताल्लुक बन जाए? तो खुदा का बंदा पतरस उनसे कहता है, जो अभी नीरज साहब फरमा रहे थे, पतरस रसूल उनसे कहते हैं, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। तौबा अपने गुनाहों से कि मैं गुनाहगार हूं, मसीह ने सलीब पर मेरे गुनाहों के लिए जान दी। खुदावंद, मैं आपको अपना खुदावंद कबूल करता हूं, मेरे गुनाहों को मुआफ कीजिए, मुझे पाक कीजिए, मुझे जो इनाम रूहुल कुद्स है वो दीजिए, ताकि मैं आपके लिए जिंदगी गुजार सकूं। मैं आपको अपना खुदावंद कबूल करता हूं, करती हूं। तो जब आपने नीरज साहब यीशु मसीह को कबूल कर लिया, तो 1 मिनट में आपको दूंगा, अब आप मसीह के लिए क्या कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहता हूं, जैसे मैंने अभी आपके सामने ये पैगाम पूरी दुनिया को दिया, तो यही पैगाम मैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में पूरी दुनिया को दे रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह की सेवा में हूँ। यही पैगाम मैं दुनिया को देता चला आ रहा हूँ और देता चला जाऊँगा कि आप अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, अपने पापों से तौबा कीजिए, अपने मन को फिराइए और यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लीजिए और सदा के जीवन को आप प्राप्त कर लीजिए। यही मेरा पैगाम है।
जी बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपको फिर इस किताब में ले चलता हूँ। आखिरी बात तकाबले अदयान में जो कह रहे हैं गुनाहों से तौबा कीजिए, यस्सु का मतलब गुनाहों से नजात देने वाला। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तौबा और इस्तिग़फ़ार की तलकीन करते हुए ये तालीम भी दी कि नजात का दारोमदार अमाल पर है। ये मौलाना कह रहे हैं, लेकिन अमाल से कोई शख्स नजात नहीं पाएगा। आगे देखिए, ये गुनाह ही हैं जो इंसान को जहन्नम में ले जाने का सबब बनते हैं। गौर कीजिए, गुनाह ही हैं जो इंसान को जहन्नम में ले जाने का सबब बनते हैं, और यीशु मसीह गुनाहों से निजात देता है। पहला यूहन्ना, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर आप इस बात को मज़ीद जानना चाहते हैं तो यीशु मसीह जिंदा है। आप उनसे भी रजू कर सकते हैं। अहले इस्लाम के नज़दीक वो इस्लाम के एक नबी हैं, तो उनसे पूछिए, उनके साथ बात कीजिए, वो आप पर भी इन बातों को खोल देंगे। हमारा काम खुदा के खादिम होते हुए इस शो का काम उसकी मोहब्बत और उसकी वो बातें जो इंसानों के लिए जिंदगी, मुआफ़ी, शिफा, बहाली और आसमान की बादशाहत में दाखिले की ज़मानत हैं, वो हम पेश करते हैं। चूँकि हजूर मसीह ने, जो डाकू सलीब पर था, उसने कहा आप अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद कीजिएगा। मसीह खुदावंद फरमाते हैं तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो जिंदा है। आप भी उनके साथ राबता कीजिए। जो लोग कॉल करना चाहें ज़रूर हमें कॉल कीजिए। और आज जिस साहब ने कॉल की, वो जब इस बात को मानने के लिए कायल नहीं है कि मसीह निजात दहिंदा है, तो फिर उनकी मर्जी है। खुदा ने इंसानों को आज़ाद मर्जी दी है कि वो खुद इंतखाब कर सकते हैं। हुज़ूरुल मसीह आए, वाज़े पैगाम दिया, कुछ लोगों ने कबूल किया, ज़्यादातर ने रद्द किया। उनके हवारी, उन्होंने भी तालीमात इंसानों तक पहुंचाई। कुछ ने कबूल किया, कुछ ने रद्द किया। चूंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत कैसे? सलीब, यीशु मसीह का सलीब पर जान देना इंसानों के लिए आसमान की राह को खोल देता है। पतरस रसूल कहते हैं कि भेड़ों और बकरियों का खून नहीं, बल्कि बेऐब यीशु का खून हमें यीशु मसीह से मुलाकात करने के काबिल करता है और आसमान की बादशाहत में ले जाने की ज़मानत यीशु मसीह में हमें मिल जाती है। आपने फरमाया जहां मैं हूं मेरे मानने वाले भी होंगे। वो जिंदा हैं और हमें ज़िंदगी देना चाहते हैं। क्या आज आप यीशु मसीह को पुकारने के लिए तैयार होंगे? क्या आप अपनी ज़िंदगी उन्हें देने के लिए तैयार होंगे? फैसला आपका है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।